as a new education policy gives the chance to the students who have not studied music as a subject in school, they can opt for music as a subject in their college under the UG program. So for those students who have not learned before, or if they want to learn music, they can go through this way how they can learn music. And as I was telling you about Rag Bhairav, in the Mantra Saptak, how we have to do the alap or how we have to do the practice. Now we'll move towards the middle octave. Middle octave, the same alapchari, the same way of singing Rag Bhairav, it is also the same in the middle octave. As I told you, this is a rag which is a serious rag. So the notes or the combination of the swaras, they give that emotion. It can easily, we can feel that this is a serious rag, that is something which is very peaceful and which we can enjoy also, and we can meditate also while singing or while listening to this rag. Dha, sa, sa, ga, ma, re, sa. It's a very important phrase of Rag Bhairav. This phrase is also known as the Ang, Bhairav Ang. Sa, ga, ma, re, sa, sa, ga, dha, sa, ra, re, sa, sa, ga, ga, ma, ma, pa, ga, ma, da, pa, ga, ma, re, sa, sa, ga, ma, da. We can sing like this. Sometimes sa, re, ga, ma, pa, ga, ma, da. This is also right. But when we sing the rag in a pure form, or we say the different swar sangatis, which immediately gives you the picture of the rag in a very pure form, then sa, ga, ma, this seems to be more appropriate. This seems to be more touching. This seems to be more giving that type of emotion which this rag has. Sa, re, ga, ma, da. This is also not wrong. But sa, ga, ma, da. This is more nearer to the emotion which the rag wants to say. And yes, the Bhairav Ang is also very clear when we sing sa, ga, ma, da, pa, ga, ma, re,
purity of the Rag Bhairav, the melody of the Rag Bhairav comes very clear, or we enjoy it thoroughly when we start using the Bhairav Ang while singing Rag Bhairav. Like this also the Rag can be sung, or Gamada Sa Sada Pa. This also we can sing. This is how we can practice the rag in middle octave. मंद्र और मध्य सप्तक का अभ्यास यदि हम प्रातः काल अपना रियाज आरंभ कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि सुबह सुबह यदि हम तार सप्तक पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं गले पे जोर पड़ेगा। धीरे धीरे जब आपका रियाज अच्छा हो जाएगा तो आप धीरे धीरे तार सप्तक पर भी जा सकते हैं, और इस प्रकार से राग को समझकर करने में राग का आनंद भी उठाया जा सकता है, और हाँ, राग का जो शास्त्र है उसको भी सही तरीके से उसका प्रयोग किया जा सकता है। So this is the rag which should be practiced in mandra, the lower octave and the middle octave. Now the same thing can be repeated during the higher octave also, because the higher octave, when we are singing the bandishes, when we are singing the alapchari of antra, then the higher octave it helps. Gama da da sa da re sa. Now here the higher octave Komal Rishabh plays a very important role. Da re da sa sa da gama da pa da ma pa sa gama da da sa da re sa. The same thing was in the lower octave also. Da sa da re sa. The same thing can be repeated in the higher octave. गला जो है सुबह थोड़ा सा भराया सा रहता है या थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, या हम कहें कि धीरे धीरे गला जो है वो क्लियर होता है, तो यहाँ पर हम एकदम से भी तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग करें तो गला क्रैक हो सकता है, या हम कहें कि कहीं पर गले को डिस्टर्ब होता है, गले आवाज़ को डिस्टर्बेंस होती है, तो इसलिए बेहतर है मंद्र और मध्य सप्तक का प्रयोग किया जाए। अब एक प्रश्न उठता है कि क्यों एक बेसिक राग के तौर पे या जो मुख्य रागों की श्रृंखला में भैरव को लिया जाता है, क्योंकि भैरव जैसे मैंने आपसे कहा संपूर्ण जाति का है, और इसके जो स्वर है उसको मंद्र मध्य तार तीनों में ही प्रयोग किया जाता है, और अभ्यास के लिए कोमल सुर होने के कारण, ऋषभ और धैवत का कोमल होने के कारण इसका अभ्यास जो हम करते हैं वो आगे चलकर अन्य रागों को गाने में सहायक होता है। तो मंद्र सप्तक को हम बार बार क्यों इतना जोर दे रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ को अभी बनना है, और आवाज़ में गोलाई आना या आवाज़ को बनना या आपकी
तानों को बनना, ताने की जो अलग अलग स्वर हैं उनको इस प्रकार से चमकना चाहिए जैसे कि मोतियों की माला, यानी हर स्वर एक एक मोती की तरह जो है वो अलग क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है। तो वो सब हम कैसे करेंगे? हम जब हमें राग के बारे में हम उसके विस्तार कर पाएंगे तभी तो हम कर पाएंगे। और राग महज बार बार मैं कहती हूँ कि सिर्फ सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा इस प्रकार से हम राग को गाएंगे तो वो पूरा राग का स्वरूप प्रदान नहीं करता। वो मात्र आरोह अवरोह है जो बताता है कि राग में कौन कौन से स्वर प्रयोग होते हैं, किस रूप में होते हैं और आरोह और अवरोह में किस प्रकार से अलग अलग स्वर होते हैं और कौन सी स्वर संगति जो है वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हम किसी राग को गाते हैं तो उसके आरोह और अवरोह में ही वो स्वर संगति जो है वो झलक जाती है। तो जब हम राग को गाते हैं तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आए कि राग जो है उसकी जो बेसिक नॉलेज जब हम उसकी लेते हैं तो उसमें किस प्रकार से सप्तक का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, स्वर संगति का बहुत बड़ा योगदान होता है, अंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भैरव को गाते हुए हम सारे गामा क्यों नहीं लेते या सारे गामा हम कम क्यों लेते हैं, क्योंकि गांधार षड से गांधार जो है वो स्वर संगति वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भैरव अंग को भी स्पष्ट करती है। आप देखिए राग के स्वरों को बार बार गाया जा रहा है तो किस प्रकार का भाव दे रहा है। सा गा मा धा पा धा मा मा पा गा सा गा सा रे गा मा पा गा मा धा धा पा गा मा धा सा धा पा गा मा धा नी सा, इस प्रकार से भी लिया जा सकता है। गा मा धा नी सा सा धा पा पा गा मा धा पा धा मा मा पा गा मा रे सा रे गा मा रे सा सा धा धा सा धा रे सा धा पा गा मा पा गा मा रे सा। आपके गले को थोड़ा जोर पड़ सकता है क्योंकि आपने पहले तो कभी ऐसा अभ्यास किया ही नहीं। तो जब हम पहली बार कोई अभ्यास करते हैं तो थोड़ा गले पे जोर पड़ता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि मंद्र सब तक जाए कि इससे इस जो गले पे जो जोर पड़ता है ये कम पड़ता है और आप रागदारी भी जो है आप सीख लेते हैं। क्योंकि हम रागों की बात कर रहे हैं तो रागदारी संगीत की बात होगी। तो रागदारी संगीत में जो पहला भाग है आरोह अवरोह पकड़ और उसके बाद उसका विस्तार, और इस विस्तार में स्वरों के जो विशिष्ट कॉम्बिनेशंस हैं वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। So these combinations are very very important while practicing the rag because these combinations of different notes they make the rag. They are the main feature of the rag. So we have to, when we are singing the rag, these features have to be emphasized again and again so that the rag, the main face of the rag, or we can say the rag can also come in its beautiful shape. Besides that, we can also differentiate the rag with other rag or with any other rag which is also having the same notes, or we call it samprakartik rag, which is somewhere very nearer to that rag. तो भैरव जो है उसका सांप्राकृतिक राग जैसे आपके कलिंगड़ा है या रामकली से भी उसको या भैरव के अन्य प्रकारों से उसको कैसे अलग किया था। तो राग भैरव को एक तरफ अभ्यास करें
और दूसरी तरफ उसके जो उसकी स्वर संगति है उसको ध्यान में रखें और उसको समझें। तो जैसे मैंने कहा कि आलाप इस प्रकार से इसका होता है। आलाप क्या है विद्यार्थियों के लिए बताएं, जो नए विद्यार्थी हैं, विशेषकर जो पहले सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, वो कहते हैं हमें आलाप आता नहीं या हमने कभी सीखा नहीं। तो वो इस प्रकार से इस लेक्चर में जिस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ उसको फॉलो करते हुए आलाप को भी धीरे धीरे समझने और करने लगेंगे। यानी स्वर वही है, उनको किस प्रकार से सजाया जाए, लेकिन सजाने का एक नियम है। उन नियमों के तहत ही उस राग को सजाया जाए, उसमें विशिष्ट स्वर संगतियों का ध्यान रखा जाए। ऐसे स्वर जो कि उस राग में प्रयोग नहीं होते हैं, विवादी के तौर पर भी हो सकते हैं, उन स्वरों का प्रयोग बिल्कुल न किया जाए। या यदि ब्यूटी स्पॉट की तरह कभी कभी कुछ गायकों ने किया है, लेकिन विद्यार्थी जीवन में कोशिश कीजिए कि जो राग में दिए गए जो स्वर हैं उन्हीं का आप प्रयोग कीजिए। को इस प्रकार से विवादी स्वर को लेकर या कोई ऐसा स्वर जो प्रयोग नहीं हो रहा है उसको लेकर आप अभ्यास न करें, क्योंकि वो विवादी स्वर का प्रयोग जो है वो कभी कभी कलाकार लोग करते हैं, लेकिन बहुत बहुत कम मात्रा में करते हैं कि राग को सजाने के लिए या उसमें एक ब्यूटी स्पॉट की तरह उसको प्रयोग करते हैं। सो दिस वॉज हाउ we can do the alapchari of Rag Bhairav. The same combinations in Mandra Saptak, the same in middle octave, or Madhya Saptak, the same in the higher octave, that means the Tar Saptak. Now later on, after knowing the alap, we should practice the alankars of Rag Bhairav. Some of the alankars I will be telling you with the help of tabla, and these alankars have to be practiced again and again and again because they are the base of the taan. So they are also known as the paltas. जब बार बार हम किसी चीज को पलटते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो उसको पलटा कहा जाता है। तो इन पलटों का, इन तानों का अभ्यास आपको बराबर करना चाहिए। ताल के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो एक जब हम गाते हैं तो एक झटका लगता है बॉडी को और वो कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ को असर करता है। वो जो झटका है वो हमारी आवाज़ को में तान को बनाने में, उसको गाने में जो है वो हेल्प करता है। और इस प्रकार से स्वर जो है वो अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जैसे सा रे गा मा पा आप कह सकते हैं कि आरोह है, लेकिन हम यहाँ पर इसे अलंकार के रूप में ले रहे हैं। अलंकार का मतलब होता है आभूषण जो राग को सजाता है। अब तबले के साथ देखें। सा रे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा ग रे सा रे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा ग रे सा। इसी को आकार में भी देखें। धा तिन तिन ता ता सम से अब इसी को हम ताल देकर यदि गाएं, अलंकार है। इसको बार बार अभ्यास कीजिए, फिर इससे इसका पलटा कैसे बनेगा। ये पलटा हो गया। और आरोह या अलंकार रे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा ग रे सा।
अब इसी को यदि हम पलटे के रूप में देखें, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा नी सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा नी ये हुआ एक पलटा। अब हम यदि इसकी भी डबल स्पीड में गाएं तो सा रे गा मा पा धा नी सा धा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। चाहे वो अलंकार हो चाहे पलटा हो, अलंकार सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ये अलंकार के रूप में है। अब इसको यदि हम पलटे के रूप में देखें, सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा नी सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा ये अलंकार के रूप में है। एक सांस भरकर आप एक सांस में कितने ले सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आप उसको बार बार गाइए ताल के साथ। सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा नी सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा नी सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा नी सा। जब सांस खत्म हो जाए रुक जाइए, फिर भरिए। गले में क्रैक भी आएगा, रेशा भी आएगा, आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस होगी, होने दीजिए। अब इसी को लेके आप अगला कर सकते हैं। सा सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे सा। इसी का आकार रूप में देखिए, रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे सा। आप देखिए साथ साथ जो है एक एक स्वर के और दूसरे स्वर में एक अलग अलग दाने की तरह वो चीज सामने स्पष्ट हो रही है। सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे सा। बार बार इसको करना चाहिए। तो ये आरोह और अवरोह की तरह अलंकार हो गया। अब इसको यदि एक पलटे के रूप में देखा जाए तो कैसे, सा सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे सा नी नी सा रे गा गा मा पा पा धा धा नी नी सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे सा नी नी सा। आकार में इसको इसी चीज को आप लीजिए। यानी कि जो आप स्वर ले रहे हैं वो एकदम अलग अलग स्पष्ट नजर आना चाहिए और इसको बार बार अभ्यास कीजिए। सा रे गा मा पा धा नी धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। इस प्रकार से एक और हो गया अलंकार। एक अलंकार हो गया।
सा सा रे ग रे ग म प म प द प द नि द नि सा सा नि द नि द प द प म ग रे ग रे सा। ऐसे आप बहुत सारे अलंकार जो हैं स्वयं भी बना सकते हैं। सा रे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा। एक और अलंकार हो गया। इस तरह अलंकारों को बार बार आपने प्रैक्टिस करना है। सा रे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा। तो आपको जो है एक तरफ आपका जो राग है वो आपका बिल्कुल स्पष्ट होता जाएगा, आपके ताने जो है वो बनती जाएंगी, और दूसरा आप राग को सही तरीके से आप गाएंगे। ये आपका राग की समझ या राग को तो बता ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपके गले को भी बना रहा है। धीरे धीरे इसमें आप लय तेज करके इसको, इन पलटों को, इन अलंकारों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यही आपका बेस बनाता है आपके गाने के लिए। So Rag Bhairav has got so many alankars. You can make your alankars and you can practice this again and again with the help of tabla, because this is an electronic tabla, so it is very helpful. Nowadays we are having so many gadgets, like we can get the tabla on your mobile also, we can get tabla manual also, and we can get tabla as an electronic device also. So with the help of tabla or with the help of teen tal in tabla, you should practice the rag and you should understand what you are practicing. जो आप बार बार अभ्यास करते हैं उसको आप समझिए, और आप देखिए इस प्रकार के अभ्यास से आपको इसके परिणाम जल्दी नजर आएंगे, और आपका गला जो है पहले से बेहतर और बेहतरीन होता चला जाएगा। ये आप प्रैक्टिस, इसीलिए आपको बेसिक रागों को करना बहुत बहुत ज़रूरी है। बेसिक राग जो हैं उनमें राग भैरव आता है। तो आज आपको इसी प्रकार से हमने राग भैरव के बारे में जो जानकारी दी उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, एंड एज वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. So doing practice again and again of Rag Bhairav, one way you are learning Rag Bhairav also, you are singing Rag Bhairav, you are knowing about Rag Bhairav, and on other hand you are developing your knowledge, you are understanding, you are trying to develop that path where you, whatever you are doing practically, you are understanding it. You also know the Shastra Paksh or the theory part of the Rag. So this is how you should practice Rag Bhairav, and we are in next our episodes we'll try to tell you about different bandishes, and slowly so on we'll move to other basic ragas also of Hindustani classical music. So I come to the end of today's lecture, and I hope with the help of this lecture you will not only understand the rag but also do your practice thoroughly. Namaskar.